Hello students, welcome in class 11. uh, this is my first video. I will mostly take my class on video because you can preserve this video and you can store this link on your phone, and whenever you want to watch that topic then content, you can take the reference. Okay, so I will make each and every video of each and every topic, okay, and will upload in YouTube, and I will share the link of that YouTube, so that whenever you free, not only the time bounded that 11 to 11:40, that time maybe many problem maybe occur on my side internet and your side on internet, okay, on my mobile and your mobile. So there may be problem arises, problem is arising with a student and sometime with me also, due to connectivity, that some student claim that sir your voice is not coming, and even when many students voices not coming to me also. So two-way communication is mostly time not possible, so that's why I'm making the proper video of that topic, so that you can understand what is the basic concept of that particular topic. Okay, and if you feel difficulty in one time watching the video, then you watch again and again. Okay, you watch again and again that topic and that video, definitely your concept will be more clear. And suppose that by watching many time my video you are unable to understand what is the topic exactly saying, then you simply message me, sir this topic, this particular portion is I'm unable to get what exactly concept of that topic. Okay, so in this case I will definitely explain you separately that this problem will be sorted out by this way. Okay, so don't worry, come to class 11 Python. Near about the classes we are started on last of August, so you have to time for your completion of syllabus at September, October, November, December, January, and in February mostly practicals and other things are get started. So only 5 month time right now from this time you have. Okay, so in 5 months you have to completed the entire class 11 syllabus. तो CBSE ने भी इस प्रॉब्लम को देखा है कि आपके पास चूँकि टाइम कम है और आपको जो सेशन फाइनल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना है वो मार्च में ही उनको कंडक्ट कराना है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हर बार सेशन थोड़ा लेट हो। तो उन्होंने क्या किया, सिलेबस को रिड्यूस किया है, ठीक है ना, सिलेबस को रिड्यूस किया है इस 5 मंथ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस का ये रिवाइज्ड सिलेबस है क्लास 11, इसका कोड नंबर है 083, याद रखिएगा, और ये 2020 और 2021 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आप जब पूरा क्लास 11 पढ़ लेंगे तो आपको टोटल क्या क्या नॉलेज आएगा, आप उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, आपको टोटल किन किन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। पहला तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आपको डेफिनेटली कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप ये पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और कंप्यूटर में जो डिफरेंट डेटाज होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप जो होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होगा, ठीक है ना, इस पोर्शन में आपको कि कितने तरह के डिफरेंट डेटा होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रोग्राम कैसे बनता है, किस एल्गोरिथम से बनता है, एल्गोरिथम मतलब उसका बेसिक डिज़ाइन कैसा होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है ना। और
वो एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, किन किन सिचुएशन पे वर्क करता है, सेम केस हो तो कैसे वर्क करता है, केस को थोड़ा एडवर्स किया जाए, डिफरेंट किया जाए तो वो कैसे वर्क करता है, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, मीन्स इन दिस टू एवर टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग नॉलेज। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप होगा। ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग आज के वर्ल्ड में, आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, एबिलिटी टू वर्क in the cyber world with understanding cyber ethics means that you will get able to use the internet in proper way. Okay, आज के डेट में इंटरनेट पे बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं और हमको पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे या किसी भी मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे हमको कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या देखना चाहिए, हमको क्या नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें साइबर एथिक्स में भी, ये भी आपको क्लास 11 के बाद आप सीख जाएंगे। ठीक है ना, साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम, आज के डेट में बैंक फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे लोगों के अकाउंट से कट जाते हैं, निकल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। ठीक है ना, एटीएम लोगों के हैक हो जाते हैं, अकाउंट लोगों के हैक हो जाते हैं। तो सिंपल दैट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इंटरनेट। सो व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी एंड व्हाट आर द साइबर क्राइम, मीन्स आप इंटरनेट पे ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो क्राइम कहलाएगा। आप मान लीजिए किसी के फेसबुक अकाउंट खोल रहे हैं, उसका आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैंने तो उसका पैसा नहीं चुराया, मैंने तो उसका कोई चीज़ नुकसान नहीं किया। ठीक है ना, आप तो बैठे थे अपने कंप्यूटर पे, आप क्लिक करते गए, आप चीज़ें डालते गए, तो आप तो कहेंगे कि नहीं मैंने तो कोई गलती नहीं की। बट नो, इट इज़ नाउ बिकम द क्राइम। ओके, so what type of different crime on internet is right now present, and what are the law made by the government to prohibit this type of act. Okay, so there are certain Indian government make a certain law to prohibit such type of activity that may harm, that someone else data is get corrupted and get published in public. Okay, so these act आपको इस टॉपिक में ये चीज़ जानने को पूरा मौका मिलेगा। ठीक है ना, क्लास 11 के बाद जो भी आउटकम आपका आएगा तो उसमें आप ये चीज़ जानेंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी टू मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड द बायोमेट्रिक्स एड्स। ठीक है ना, तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी का और कितना एडवांसमेंट हो गया है। ठीक है ना, इसके बारे में भी आपको इस पूरा क्लास 11 की बुक ये पाइथन पढ़ने के बाद ये भी थोड़ा जानेंगे। तो मीन्स दैट कि आपको सिर्फ पाइथन ही नहीं जानना है क्लास 11 में, आपको पाइथन के साथ साथ जो करेंट इंटरनेट के लॉ होते हैं वो भी जानने हैं। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ सोसाइटी के लिए, कि बेटरमेंट के लिए किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको ज्ञान आएगा। डाटा टाइप, डाटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी आप अच्छे से आप जानेंगे। ठीक है, आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सीबीएसई ने कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो सीबीएसई ने टोटल अभी आपको पहले 4 यूनिट होता था, अभी 3 यूनिट कर दिया है। इसमें सबसे पहला यूनिट का नाम है आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। टोटल थ्योरी क्लासेस 10 है और थ्योरी में जो मार्क्स मिले, टोटल थ्योरी का जो मार्क्स है वो 10 है और टोटल थ्योरी की जो क्लासेस चलेंगी वो 10। मीन्स दैट कि अगर आपका 10 क्लास चलता है तो ये पहला यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है,
10 क्लास चलता है तो पूरा ये पहला यूनिट कवर हो जाएगा, एंड इट विल कंटेन 10 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. So this portion will cover, this portion will come with marks 10, okay, and it will take how many days to complete this entire unit is 10, and practical is 5, means that in this portion you have to do some practical also, okay, and that practical marks is what, 5 marks, okay, oh sorry, 5 period, okay. The next unit is computational thinking and programming 1. Computational thinking and programming 1 means that one means there must be second 2, computational thinking and programming 2, okay. So that 2 portion is not right now in your syllabus, okay. So first unit will cover 45 marks, and the theory total take 50 classes, and practical will take total how many classes, 35 classes. This means that in 70 marks of your final examination, this individual unit will cover 45 marks, means more than 60%, okay, more than 60%. So about 65% marks will cover in this unit, okay. Next, society, law and ethics, means how you can use internet in better way in your society, and make aware society that use internet in that way. Cyber law, cyber crime, what the government is doing right now to prohibit such type of crimes, okay. So this portion will cover how many marks, 15 marks, and total theory classes will be 20. So total class 11 class will conduct total 80 classes, or in entire 80 classes, in entire 80 classes we have to complete the 3 unit, okay. So come to your first unit, in a first unit, computer system and organization, in this topic we will study, in this unit we will study some topic like basic computer organization, means computer is organized in what way, okay. So description of computer system and mobile system, okay. So मोबाइल सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे. देन CPU, व्हाट इज CPU, देन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड iOS, ओके, एंड बैटरी. सो नाउ डेज इट इज़ वेरी कॉमन, आप कहीं भी जाएंगे तो आज के डेट में ये चर्चा सुनेंगे कि मेमोरी मेरी गायब हो गई मोबाइल की, या मेमोरी का सारा डाटा चला गया, ठीक है ना. हार्ड डिस्क क्या होता है, तो ये आज के डेट में नॉर्मली सभी लोग जानते हैं. इस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या इशू नहीं आएगा, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सो नॉट ओनली हार्डवेयर, नॉट ओनली मशीन इज रिक्वायर्ड नाउ अ डे टू हैंडल अ properly handle a computer. Nowadays software is also very important thing, okay. So like simply you want to print this page, then you have to go to take the help of printing software, okay. Now you want to play a music, then you have to go to and take the help of music related software like Windows Media Player, like VLC Media Player, okay. So to start the entire computer, mouse, keyboard, your monitor, you required operating system, okay. So there are different type of operating system in your computer, okay. So we will study in this topic application software. Basically there are 3 type of software: application software, system software, and utility software, okay. Application software, simply you perform your application. System software is simply administer your computer,
to manage your computer, to handle your computer. Okay, utility means to enhance your performance of your computer. Okay, so सिंपल डिफरेंट है. एप्लीकेशन कोई काम आपको करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर को चलाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब आपसे मैं पूछ सकता हूँ कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कैसे किया जाता है. मान लीजिए अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छे से चलता रहे तो आपको एंटीवायरस डालना है. तो एंटीवायरस में भी एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम को और स्मूथ करता है. ठीक है ना. तो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहा है, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा. और वो आपके कंप्यूटर के आपका एक पर्टिकुलर काम भी करता है, मीन्स आपका कंप्यूटर को क्लीन भी करता है. ठीक है ना. तो क्लीनिंग का जो क्लीनिंग एक वर्क है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में भी आ सकता है. ओके. अब आपके सॉन्ग सुनना है कोई, आपको VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, तो VLC मीडिया प्लेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे. आप VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है. तो VLC मीडिया प्लेयर प्योरली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. देन नेक्स्ट यूनिट इज़ मेमोरी. मेमोरी यूनिट में आपको बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. आप आज के डेट में सुनते होंगे कि मेरे इंटरनेट का स्पीड इतना Mbps है, मैं डाउनलोडिंग करता हूँ इतना kbps से डाउनलोड होता है. ठीक है ना. मेरी हार्ड डिस्क है वो इतनी TB की है, मेरा रैम है वो इतने GB का है. सो सच थिंग इज़ नाउ इट इज़ वेरी कॉमन. और आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और बाकी जितने भी आगे बाइट्स हैं उनमें क्या क्या उसमें डेटा कितना होता है और क्या सब में डिफरेंस है. ठीक है. उसके बाद आएगा आपका बूलियन लॉजिक. बूलियन लॉजिक में ये पूरा सेपरेट चैप्टर होगा. उसमें एंड, आर, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स नॉर और नॉट गेट और ट्रूथ टेबल, डिमॉर्गन्स लॉ और लॉजिक सर्किट्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. ठीक है ना. इसमें आपकी डिजिटल सर्किट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बना होता है. ठीक है ना. कंप्यूटर का जो चूँकि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो एक पोर्शन ये भी डाल दिया गया है ताकि आप डिजिटल सर्किट्स को भी थोड़ा सा समझ लें और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ लें. फिर आएगा नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम ये थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है. कोर चीज़ें चल रही हैं. ये कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है. तो इसमें नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम इन बेस 2, 8, 16 एंड बाइनरी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे. ठीक है ना. इनकोडिंग सिस्टम, ASCII और ISC, एंड यूनिकोड, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. इनकोडिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पे पूरा वर्ल्ड कैसे कम्युनिकेट कर ले, पूरा वर्ल्ड कैसे कम्युनिकेट कर ले, ईज़िली कम्युनिकेट कर ले. जैसे मान लीजिए कन्नड़ जानने वाला पर्सन है और ही वांट टू सेंड द मैसेज टू ए पर्सन हु नो ओनली बांग्ला, हु लिव इन वेस्ट बंगाल. सो कन्नड़ में कोई उसको कन्नड़ आता है, वो कन्नड़ में इंफॉर्मेशन भेजेगा, और उसको बांग्ला आता है, वो बांग्ला में समझेगा. सो देयर इज़ लैंग्वेज डिपेंडेंसी. तो लैंग्वेज डिपेंडेंसी बस सिंपल स्टेट टू स्टेट नहीं है, कंट्री टू कंट्री है. इंडिया हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, बट चाइना क्या करता है? चाइना चाइनीज़ जानता है और इंग्लिश जानता है. सो देयर मे बी a problem that when different languages are communicating in same platform, तो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा. उसमें वो बोलेगा कि नहीं हमने तो ये बोला था, और वो जितना समझेगा बोलेगा कि नहीं आपने तो ये बोला था. तो दोनों में एक प्रॉब्लम आएगी. वो बोलेगा कि गीता प्ले गिटार, ये पढ़ेगा कि गिटार प्ले गीता, तो ये बोलेगा कि नहीं हमने बोला वो सही है, वो बोलेगा हमने बोला वो सही है. तो लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने. तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है. उस प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करोगे तो वो जो इंटरप्रेट करेगा वो दोनों पार्टीज़ के लिए सही माना जाएगा. ठीक है.
तो उसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है, AS अमेरिकन स्टैंडर्ड, IS इंडियन स्टैंडर्ड, यूनिकोड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो आज के डेट में सभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है कि आप हिंदी या इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ सकता है, 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसलेटर और डिफरेंट इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ ले, कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप समझ लें। तो यह प्लेटफॉर्म आपको बताया जाएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है आपके कंप्यूटर में, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कितने फंक्शंस होते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल एनालिसिस, अ प्रोग्राम डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, ओके, सूडो कोड, ओके। तो ये आपका पूरा चैप्टर में आपका पूरा पाइथन स्टार्ट हो जाएगा। पाइथन क्या ABCD से लेके पाइथन के लास्ट प्रोग्राम तक सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था गूगल मीट में, ठीक है, तो आपको अगर याद होगा, ठीक। तो एक पहला सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें वो हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है, और वो प्रिंट करके आप देखेंगे कि पाइथन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। पाइथन के फीचर्स पढ़ाए जाएंगे, कैरेक्टर से टोकन आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल, डेलिमिटर एंड ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें बताए जाएंगे। मतलब कोई भी लैंग्वेज, पाइथन एक लैंग्वेज है ना, तो कोई भी लैंग्वेज का वर्ड होता है, ग्रामर होता है, ठीक है ना, सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, उनके और भी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर सेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में बताई जाएंगी। नेक्स्ट आएगा कमेंट, कि सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो कमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल एंड मेथड्स टू मैनिपुलेट, ठीक है। तो इसमें पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या मेथड होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो बताई जाएंगी, L वैल्यू और R वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक। फिर डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं एंड ऑपरेटर ये कितने तरह के होते हैं, ये आपको पाइथन में बताया जाएगा, ठीक है। डेटा टाइप जैसे आपका सिंपल आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम होता है, एज होता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपका एड्रेस होता है। तो कहीं कहीं पे ABCD में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कहीं कहीं पे नंबर में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कहीं कहीं पे नंबर और अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन होता है। जैसे एड्रेस है तो उसमें एड्रेस में आप लिखते हैं कि आप मान लीजिए झरना टोला में रहते हैं, तो झरना टोला एक क्या है, अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे आप, और अगर आपको मकान नंबर लिखना रहेगा तो आप डिजिट में लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ये इसमें ये चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम बना लिया, आप रन कराएंगे तो एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट कराते वक्त डेफिनेटली में भी कुछ एरर आएगा, डिफरेंट तरह का एरर आएगा। पहला एरर सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा एरर रन टाइम एरर होता है, तीसरा एरर लॉजिकल एरर होता है। तो ये सारे एरर आएंगे और ये सारे एरर आपको समझना पड़ेगा, इनके डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा और उसको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आएगा प्रोग्राम आप बनाने लगे, प्रोग्राम आप बनाने के बाद प्रोग्राम को कंट्रोल करना, थोड़ा सा उसके अंदर कंडीशंस देना, तो उसके अंदर इफ़ डालना, इफ़ मतलब ये हो तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, वो हो तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो इफ़ एल्स, ठीक है ना, फिर इफ़ एलिफ एल्स, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम आपको बताए जाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। फ्लो ऑफ कंट्रोल में
आप एक प्रोग्राम के फ़्लो को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। इसमें रेंज आ जाएगा, लेन आ जाएगा, वाइल आ जाएगा, ठीक है ना, यूजिंग फ्लो चार्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है, ठीक है ना। डेटा टाइप में हमने आपको बताया डिफरेंट डेटा टाइप होता है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है। तो एक स्ट्रिंग डिफरेंट डेटा ही होता है। तो स्ट्रिंग के डेटा पे हम क्या क्या वर्क करते हैं पाइथन में, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे लेन है, कैपिटलाइज है, टाइटल है, अपर है, लोअर है, काउंट है, फाइंड है, इंडेक्स है, आइसल नम, आइसल लोअर, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग लेके। मतलब एक स्ट्रिंग सपोज करिए आपने पास किया, जैसे यही स्ट्रिंग है ऑपरेशन, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है ऑपरेशन। तो इसमें पहला वर्ड क्या है, पहला कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, तीसरा कैरेक्टर क्या है, ठीक है ना। इसमें कोई और कैरेक्टर जोड़ना, इसमें कोई और कैरेक्टर हटाना। तो ये सब ऑपरेशंस आपको इस सेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा आपको लिस्ट। लिस्ट का मतलब सिंपल कई सारे डाटा का एक लिस्ट बना देना, कई सारे डाटा का एक लिस्ट बना देना, उसको बोलेंगे क्या, लिस्ट, ठीक है ना। डाटा डिफरेंट हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी डाटा हो सकता है, सब एक साथ मिक्स डेटा भी हो सकता है, मिक्स लिस्ट भी बन सकती है, ठीक है ना। तो उस लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस लिस्ट के सारे ऑपरेशंस को हम यहाँ पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद एक डेटा आएगा टपल। जैसा लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है, लेकिन लिस्ट और टपल में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। लिस्ट को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, टपल्स को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। दोनों का बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, लेकिन दोनों दिखते लगभग एक जैसे हैं, बस ब्रैकेट का अंतर होता है। तो जो चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लिस्ट के साथ, वो चीज़ हम यहाँ टपल के साथ भी पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही लगेगा आपको, ठीक है। तो ये समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। उसके बाद आएगी डिक्शनरी। तीसरा जो डाटा होता है आपका, पहला तो हमने स्ट्रिंग बताया, दूसरा लिस्ट बताया, तीसरा टपल बताया, और चौथा जो होता है वो डिक्शनरी होती है आपकी। डिक्शनरी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें जो डेटा होता है उसका एक रेफरेंस भी होता है। इसमें जितने भी डेटा होते हैं उनका एक रेफरेंस भी होता है, मतलब एक डेटा होता है जो मेन डेटा होता है और एक उसका एक उनका की होता है, मतलब एक की होगा या फिर उसका इंफॉर्मेशन होगा, या एक डेटा होगा उसका एक की होगा। तो इसमें एक एलिमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेन डेटा और दूसरा उसका की, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। ये वही सारे ऑपरेशंस आपको यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। नेक्स्ट आपका आएगा मॉड्यूल पे कैसे वर्क करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में। पाइथन इज़ नॉट द कंप्लीट प्लेटफॉर्म। आपको अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करने के लिए, अलग अलग एरियाज़ में वर्क करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पाइथन आपने खोल दिया तो प्रोग्रामिंग करने लगे तो पूरी सारी चीज़, सारे एरियाज़ के प्रोग्राम हो जाएंगे। अगर आपको कुछ स्पेशल प्रोग्राम करने हैं, जैसे मैथमेटिक्स के प्रोग्राम करने हैं, तो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मॉड्यूल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका तीसरा यूनिट आएगा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में सोसाइटी के अंदर हम इंटरनेट को कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, so we are more responsible to use internet on proper way, ठीक है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लीजिए 66 साइट बैन कर दी, तो हमको ये पता हो जाना चाहिए सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट्स को बंद करके रखी है, हमको इस वेबसाइट्स को नहीं खोलना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहती है उसके सिटीजन्स को वो करना पड़ता है कि ये करना है तो वो सिटीजन वो करेगा, ये नहीं करना है तो वो सिटीजन्स को नहीं करना होता है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साइबर सेफ्टी, आप ब्राउजिंग और वेब, मतलब आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, आपको अगर अपनी आइडेंटिटी पब्लिक करनी है, आपको आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करना है तो किस तरह से करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी
ठीक है ना। आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और सामने वाले की भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो साइबर ट्रोलिंग क्या होती है, बुलिंग क्या होती है, आज के डेट में आप सुनते होंगे कि उन्होंने वो ट्वीट किया, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो ट्रोलिंग क्या होती है ये आपको बताया जाएगा। बुलिंग क्या होता है, ठीक है ना। आप नॉर्मली ये वर्ड सुनते होंगे आज के डेट में कि राहुल गांधी बुलिंग, मोदी जी वाज बुलिंग, बीजेपी पार्टी वाज के अगेंस्ट में ये चीज़ किया गया, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में ये चीज़ें किया गया। तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस, ये वर्ड्स सुनने में आते हैं। तो मोस्टली ये चीज़ें आपको पॉलिटिकली या सिनेमा से रिलेटेड या अलग अलग चीज़ों में ये आपको कहीं ना कहीं सुनने में आएंगी। तो उन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या आप उसका मीनिंग है ये हम आपको क्लासेस में बताएंगे, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क्स, ठीक है ना, किस तरह से हम सोशल नेटवर्क का अप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड्स ऑफ रूमर कैसे फैल जाता है, ठीक है ना। एंड कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग की कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे ट्विटर, LinkedIn, ठीक है ना, फेसबुक, ये सब क्या है और इनमें इनको किस तरह से कितने अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड स्पेसिफिक यूज़ एंड रूल्स, तो इनके भी रूल है। जैसे आपने फेसबुक अपनी आईडी खोली है तो आप किसी और को फ़ोटो लाके आपने लगा दिया, ठीक है ना। और तो क्या करना चाहिए कि ना क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे अंदर से भी कभी कभी फीलिंग आ जाती है, लेकिन उसके लिए रूल्स भी बन चुके हैं। सेफली एक्सेस टू वेबसाइट, एडवेयर, मैलवेयर और वायरस और ट्रोजन, मतलब कंप्यूटर को कौन कौन से वायरस जो प्रोग्राम से जो हार्म करते हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। एडवेयर, मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, ये आप नॉर्मली आज के डेट में सुनते होंगे। वायरस तो सुने ही होंगे आप, कोरोना वायरस, कंप्यूटर का भी उसी तरह का वायरस होता है, हो जाता है, ठीक है। सेफ्टी कम्युनिकेटिंग डाटा, ठीक है ना। इंश्योर कनेक्शन, एवेस ड्रॉपिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप ये कैसे एश्योर करेंगे कि आपका मैसेज उनको ही मिल रहा है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है, या आपका मैसेज कोई चुपके से पढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। या आपके कंप्यूटर पे कोई एंटर तो नहीं कर गया है और आपको पता भी नहीं है, आपके मोबाइल में एंटर किया हुआ है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन देख रहा है, पढ़ रहा है, आपकी चैट पढ़ रहा है। तो ये पोर्शन इस चीज़ में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको जैसे आपने मोबाइल पे या इंटरनेट पे कोई चीज़ बनाई, कोई चीज़ क्रिएट किया, कोई प्रोग्राम बनाया या कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो जो चीज़ बनाया वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसको आप अपने ढंग से यूज़ किए। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और आपके सॉफ्टवेयर को कोई चोरी करके बोल दिया कि नहीं है तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कैसे जानेगा, थर्ड पर्सन कैसे जानेगा कि एग्जैक्टली किसने बनाया है। तो हो सकता है कि वो आपके दिमाग में जो दिमाग से जो बना है उसका यूज़ करके वो ज़्यादा एडवांटेज ले ले, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना दिया गया है ताकि आपका वो जो आपका अपना बनाया हुआ क्रिएशन है, अपना बनाया हुआ डिज़ाइन है, आप उसको अपने नाम से पेटेंट करा लें, आप उसको अपनी ब्रांड दे दें, आप उसको अपना टैग दे दें ताकि उसको कोई भी यूज़ करे तो आपके हिसाब से यूज़ करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट है प्राइवेसीज लॉ, फ्रॉड, साइबर क्राइम। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इंटरनेट पे कितने तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, कितने तरह के साइबर क्राइम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या एक्ट है, IT एक्ट 2020, बताइए 20 साल पुराना है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। 20 साल पहले इंटरनेट का रूल कुछ अलग था, आज 2020 है, तो 20 में इंटरनेट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी साइट्स आ गए हैं। तो उसमें क्या है आपका, तो ये IT एक्ट में आपको बताया जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो जैसे हमने आपको बताया था लर्निंग आउटकम में, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप टेक्नोलॉजी को कितना बेटरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। तो ये पोर्शन में आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है।
कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन्वायरमेंट को कितने अच्छे से सेव कर सकते हैं, ठीक है ना, और अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आज के डेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कौन कौन से हैं जिनको हम इन इश्यूज से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल्स होगा वो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो प्रैक्टिकल मार्क्स में जो 12, चूँकि 70 मार्क्स थ्योरी है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है, तो 30 मार्क्स में कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देखेंगे कि 30 मार्क्स में जो आपका पाइथन प्रोग्राम है वो कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। मीन्स कि आपके 30 मार्क्स में 12 मार्क्स का, इसमें 50% इज योर व्हाट, प्रोग्रामिंग। ओके, रिपोर्ट फाइल जो आप बनाते रहेंगे प्रैक्टिकल का डेली हर वीक में, जो मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा वो अगर आप कंप्लीट किए रहेंगे तो वो 7 मार्क्स आपको फाइनल लास्ट में मिलेगा। वाइबा होगा, वाइबा कितने मार्क्स का होगा आपका टोटल वाइबा जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, और उसके बाद 3 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 22। और जो प्रोजेक्ट आपको असाइन होगा, 2 प्रोजेक्ट आपको असाइन होंगे, ठीक है ना, क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी, ठीक है। एक मिनी प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट जो आप बना लेंगे ऐसे ही, और एक हो जाता है ग्रुप का प्रोजेक्ट जो आप एक ग्रुप के साथ बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो टोटल प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा, वो आप फाइनल सबमिट करेंगे हमको, ठीक है ना। जो आपको छोटा प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो नियर अबाउट अक्टूबर के आसपास दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको कंप्लीट कर लें। उसके जस्ट 1 महीने बाद आपको मेजर प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, ताकि उसको टाइम से कंप्लीट करके आप हमको नवंबर के लास्ट तक उसको आप हमको दिखा सकें, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स में 12 मार्क्स याद रखिएगा, पूरा प्रोग्रामिंग होगा पाइथन का। 7 मार्क्स आपका फाइल का जो आप बनाएंगे उसके लिए, 3 मार्क्स का वाइवा होगा आपका, और 8 मार्क्स जो होगा आपका, 8 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होगा। ये आपका प्रैक्टिकल्स की लिस्ट हैं। इसमें देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल्स ये आपको चूँकि जब टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक के हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल इंट्रोडक्शन था क्लास 11th का। इसको मैं YouTube पे डाल दूँगा। आपको किसी भी पोर्शन में कोई चीज़ समझना है कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, उस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास से आपका टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बुक के हिसाब से आपका जो पहला यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।